Good morning, everyone, ladies and gentlemen. We are really delighted to have such a wonderful and enthusiastic, innovative minds amongst us. Moving forward, it's time to invite our speaker for today's session. We will be having a workshop on creating a business model presentation from 12 to 1:30 p.m. So we request all the participants to feel free to clear their doubts during the session itself. Now, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Priyesh Tiwari, our speaker for today's session. Mr. Tiwari is the mentor at Global Center for Entrepreneurship and Commerce. We are really delighted to have you on board. Over to you, sir. Thank you, Inderpreet. Thanks Amity University and especially the Incubation Center and these lovely young people who invited me for this talk. And I hope that next 90 minutes or so, I don't know if I'll wind up in 90 or probably a little less than that or a little more than that. But I hope that this would be useful for the participants and in terms of preparing themselves for presenting their thoughts tomorrow. So, Chaliye, let's begin. Okay, so the task that has been given to me is to discuss business models and in the process of entrepreneurship, how business models work and what does this step entails. I mean, what are those main things that you need to take care of while preparing a business model, or how do you prepare a business model in the beginning? And even before that, the first step, what exactly is a business model? So in this session, I will try and explain you that. So what we have done here is that there are two sections of this presentation. One is where we discuss business models as a concept. What business model is, how does it helps, why is it needed, and what are some major business model templates that are already being exercised by various companies in the market. That would give you an idea about the basic understanding of business models, how this thing works, and probably you might be able to, let's say, select a few which could serve as a template for your business ideas also, for your startups. And then we'll discuss a business model framework which will help you to devise your own business model. So in that step, basically that would be your working step, wherein I'll explain you the different components of that business model canvas or framework and how you can utilize that, what you can do, what you can fill in those various parts so that your idea of your own business model gets clear and you can build up from there during these next 24 hours that you will be working on. Chaliye, without further explanation on the first slide and giving you a broad, very long introduction where you will become disinterested after some time, let's actually start the presentation. Okay. So what exactly is a business model? What business model is, what business model does, or what business model is that it describes how an idea will create value. How are you going to create value for your customers, for your stakeholders, for your shareholders? And how will you deliver that value to your customers at an appropriate cost? Because it is very important to understand the economics part of it, the unit economics part of it. In fact, some of you might be aware about this concept of unit economics, some of you might not be. But right now, since this is an ideathon and we have just started developing our ideas, so it is not very critical as of now to understand unit economics. In fact, I believe some of you would be from non-management or non-commerce backgrounds also, engineering and those things, right, Ayushi? There are a few people like that, participants? Yes, sir. Yes, okay. sir. Okay. So for them, you need not worry about these economic concepts and these financial concepts as of now, because right now, what we are trying to understand is how to materialize an abstract thought. A business model does that. That how do you
make money out of your business idea. कैलकुलेट कैसे होता है, कितना कमाएंगे, कितना कॉस्ट लगेगा, वो सब लेटर एस्पेक्ट्स है. अभी तो हम ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है एब्स्ट्रैक्ट, जो प्रोबेबली एज आई हैड सीन दैट शेड्यूल, आप लोगों ने इसके थोड़ी देर पहले प्रेजेंट किया होगा इस सेशन से पहले, यू वुड हैव ब्रीफली डिस्कस योर बिजनेस आइडिया, उसको कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में कैसे लाते हैं. दैट इज व्हाट अ बिजनेस मॉडल डज. सो व्हाट there are three major parts of any business model. अब हम आगे जितने भी बिजनेस मॉडल्स डिस्कस करेंगे, उन सब में तीन मेजर पार्ट्स होते हैं जो कि उस बिजनेस मॉडल का को क्रिएट करते हैं. एक, द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इट टेक्स टू मेक समथिंग. Whatever your idea is, it might be about some service, it might be about aggregation, it might be about agriculture, it might be about creating some physical product. Actually, whatever that idea is, the first part is how are we going to make this? Who is going to make it? At what cost are we going to make it? How will that design work? इसको बनाने के लिए raw material कहाँ से आएगा? In terms of production, in terms of service also, what would be the standard operating procedures? Who would be those people जिनके through हम serve करेंगे? Who would be those people who would be at the front line? Who would be the back end people? This is the first major aspect of your business model. Then, whatever you produce, how are we going to sell it to the customers or to the people for whom we have created this? Would our product or our service be of that nature where you get into that better mousetrap philosophy, right? You people might have heard that story about even if you live in a jungle and you can create a better mousetrap, then the world will create a path to your place. Would you be able to create something really like that? For example, the mousetrap is, as a concept, it is used, but if we translate it into real terms, would you be the next Apple of your field that people wait outside your stores for 1 day, 2 days, 3 days to buy those heavily priced products? But of course, today Apple is also not at that platform where they used to be in the last decade of the past millennium or the first decade of this millennium. Today, they are also facing stiff competition from everybody, almost everybody, the Chinese companies, the Korean companies. If the customer is not dying to buy your product and you have not come out with some groundbreaking idea, but still you have something that the customer needs, and once you make them realize that, they will buy it. So how do you make those customers realize that thing? You know, it is said about observation power के लिए एक चीज कहते हैं कि observation is about seeing those things and making deriving meanings out of what you are seeing. And then there is a higher observation power which says deriving meanings out of those things which you are not seeing or something which is not happening. Probably if management की students जो होते हैं वो research में इस चीज को पढ़ते हैं, that you see a few people interacting amongst each other and you make meaningful conclusions out of it. But then the higher power of observation is when people are not interacting with each other, when they are not doing what they were supposed to do, और आप उसमें से भी meaning निकाल लें. Can your marketing or your the customer facing departments, your sales departments become that receptive that they can understand those hidden meanings of your customers' interactions with you,
or why they are not interacting with you. If everybody is like using your app and they like it, when the pop-up comes and they say, yes, we like your app's experience, and when you say the next window that please rate us on Google App Store, and they say remind me later, not now, probably later, so then there is something wrong. क्योंकि अगर वाकई में अच्छा लगा तो रेट करने में क्या इशू है, और अगर वो रेट नहीं कर रहा है तो क्या उसे वाकई में अच्छा लगा, या वो सिर्फ दे आर बीइंग पोलाइट कि अभी ठीक है, मैं अगर नो भी कहूंगा तो क्या होने वाला है, हाउ आर दीज पीपल गोइंग टू चेंज. So making meanings out of those steps. Then the third, how and what the customers are going to pay for that particular product, for acquiring, for taking that service. First thing, will they pay? How much will they pay? And how will they pay? Is your service or your product valuable enough कि उसके लिए कोई अपनी जेब से पैसा खर्च करेगा, या तारीफ बहुत करेंगे, पैसा नहीं देंगे. अगर आप एनजीओ चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ बिजनेस मॉडल देयर, क्योंकि आपको डोनेशन से रेवेन्यू आती है. बट देन डोनेशन के रेवेन्यू के लिए भी डोनेशन एनजीओ को वहीं से आती है, या सोशल सर्विस जो सोशल एनलाइटनमेंट वाले स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको भी डोनेशन तभी मिलती है जब उनका कस्टमर बेस एक बड़ा हो, और वो जो डोनेशन देने वाली कंपनी है या जो भी मेंबर है या जो भी एंटिटी है, वो उसको उस कस्टमर बेस की जरूरत हो, तब वो डोनेशन देते हैं. बिकॉज सी, you people are young, most of you are young, and believe me when I say this, everybody in every transaction or every relation will seek a benefit for themselves. Some would be more mature who will see a mutually beneficial transaction. Most of the people otherwise would be कि इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है. And that is the way the world works. In fact, मतलब हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे बिकॉज वो इस प्रेजेंटेशन का या इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट दिस थिंग of seeking benefit out of interactions is what makes the world move, is what makes the world let's say progress, develop. क्योंकि अगर लोग अपना फायदा देखना बंद कर देंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो काम करना भी बंद कर देंगे. So that should not happen, right? Right now we are in this pandemic. Everybody is devastated. Almost, I believe the participants would be from all over India, from various cities, right? Yes, sir. But apart from a few states, almost every state is reeling under this pandemic. People are dying left, right, and center. पिछले साल ऐसा था, and I believe most of the participants would agree to this. पिछले साल ऐसा था कि हम स्टोरीज सुन रहे थे, कोविड का उसे इन्फेक्शन हो गया, किसी को हो गया, इतने नंबर्स हो गए, उतने नंबर्स हो गए. लेकिन दिस ईयर इट इज अबाउट आवर फैमिलीज, अबाउट आवर रिलेटिव्स, अबाउट आवर सराउंडिंग्स, and it is very devastating. And during these tough times also, there are people who are trying to help each other. There are people who are trying to create food and distribute food free of cost to COVID patients and those things. There are people who are trying to arrange oxygen cylinders for them. This is because probably in India somewhere we believe in that karma philosophy, right? आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उसका फल कहीं मिलेगा. इसी लालच से ही सही, कम से कम लोग एक दूसरे की हेल्प तो कर रहे हैं. So, will your customers pay? What will they pay? At what price point? And how are they going to pay? इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जो प्रोबेबली आप बिजनेस के थोड़े लेटर डेवलपमेंट फेज में आएंगे, which would be about the credit period. How much credit period are your customers going to ask from you? In every business, there is a credit period system that works, especially in B2B segments. So you have a 15 days credit period, 30 days credit period, 45 days credit period, 60 days credit period.
which means आपका working capital block हो जाता है. For non-management, non-commerce students, working capital means वो पैसा जो आपको डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी होता है, that is called working capital in its most basic form. ठीक है? Now, what does the business model do? You have a strategy level. You think about those aspects of your business. How are you going to create a difference? What kind of product strategy you are going to create? Then you create a business model around it, which helps you in devising the business processes. But it is that business model that will be the connect between strategy and business process. You know, many of you might be aware about this bookstores, chain of bookstores called Crossword. Now, Crossword, when it began in India on a large corporate scale, you know, bookstores at corporate scale, huge places, बड़े बड़े malls में या shopping जो districts होते थे उनके अंदर, मतलब जहाँ पे rental बड़ा high हुआ करता है, और वहाँ पे बड़े बड़े bookstores खोले Crossword ने, and they had this business process or a business policy which said, आप आइए, बैठिए, बुक्स रखी हैं, बुक निकालिए. अब आप कैसे तय करेंगे कि आपको ये बुक पढ़ना है, खरीदना है, ले जाना है? बैठिए, वहां पे सोफास थे, कुशन्स थे, चेयर्स होती हैं, बैठिए आराम से, उस बुक को पढ़िए. उस बुक को थोड़ा पढ़ के देखिए कि आपको ये पसंद आ रही है, तो आप ले जाइए परचेज करके. इफ यू डोंट लाइक इट, पुट इट अवे. In fact, if you sit there, read that entire book, put it back in the shelf and go out, nobody is going to ask you anything. Nobody is going to question you anything. Second, you purchase a book. After 7 days, you can come back, return that book saying ke maza nahi aaya. I didn't like this book. I want to return it. And 7 days is a good enough time to read a book. So the people asked the promoter of Crossword कि सर ये दो पॉलिसीज किस लिए? आपको पता है ना इंडिया कैसा कंट्री है, हमारे यहाँ लोग कितनी किस्म के जुगाड़ बना लेते हैं हर किसी चीज में से. People will just take these books, read and bring it back. How are you going to make money? He said that, look, Indians are one of the worst readers in the world. We don't read as compared to other countries or citizens of other countries. Our reading capacity is very low. So what I want to do right now think about this strategy, is first make them read. I will make money out of it, but first I want them to start reading. At least you are not audible. I'm not audible. क्या हो गया? Just a second. Microphone is on. Hello. Yes, sir, now. Acha, it might have the The signal might have dipped a little. Yes, sir. Okay. So we were talking about strategy. So it is their strategy first to make the people start reading. Then we'll make money on it. So now how do they create that business model? They create those stores in a manner jahan par there is a space to sit and read. They recruit those kind of service executives जो आप अगर बैठकर बुक पढ़ रहे हो तो बार बार आपको आके घूरेंगे नहीं, बार बार आपको देखेंगे नहीं कि ये अभी भी किताब पढ़ रहा है पिछले आधे घंटे से, right? They created coffee shops inside Crossword, coffee and books, one of the best combinations, right? So that way they created their business model in the manner where you could sit, read, enjoy, put the book back or purchase it, go, bring it back, say nahi pasand aayi, rakh lo wapas, and your money is returned. It is not even said कि नहीं अभी ये बुक की जगह कोई दूसरी लेके जाओ, पैसा तो नहीं देंगे वापस. It was not even that. It was like they'll return your money. And they had slowly started making business out of it. But of course, थोड़ा Crossword का bad luck रहा ये
कि उसके बाद में फ्लिपकार्ट और अमेजोन आ गए और इंडियंस को रियलाइज हुआ कि भाई जो बुक मुझे 500 रुपए में क्रॉसवर्ड में मिलती है वो 350 रुपए में अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी. सो दे स्टॉप गोइंग देयर. So Crossword is trying to change its own business model also around it. But then yes, business model is something that is kind of a tool to connect the strategy and business process. आप क्या चाहते हैं और आप क्या करेंगे के बीच का कनेक्शन है जो सिखाता है ये जो आप चाहते हैं और ये जो आप करेंगे एक्चुअली होगा कैसे, कनेक्ट कैसे करेंगे हम इसे. So what a business model needs to do is just needs to collect more money from customers. Devise models, devise systems, devise processes जिनसे people will give you more money. People will give you money that you ask for. Then what it costs you to prepare those products. Think about Apple. A decent laptop would cost you 40-45,000 rupees. In 40-45,000 rupees, you will got a decent laptop. जिसमें सभी तरह के functions होंगे, this, that, and everything. Processors would be good. i5, I believe i5 आ जाएगा 45,000 के आसपास, right? You go want to buy a MacBook, you'll start from 60-65,000. और अब वो MacBook जितना advanced चाहिए, जितना thin चाहिए, start putting in money. I mean, MacBook Air, those models start from 70-75 and will take you to 1 lakh. iPhones, same thing. All over the world, in European and American markets, the sales are dipping, but still they are selling that phone at a premium. Today you have the Vivos and the Oppos and the Renos and the Goppos, Doppo, Lipo, Popo, तमाम दुनिया भर के फोन हैं जिनके अंदर बहुत शानदार आपके वो क्या बोलते हैं processors and camera qualities हैं, right? Today any of these what is that brand, OnePlus or Vivo have cameras which are fantastic. Then though that one Realme, right? But still people are paying a premium for Apple phones because what Apple did was टिम कुक के अंडर में शुरुआत में तो थोड़ा सा इश्यू आया था जब they were changing the leadership. Steve Jobs के बाद में टिम कुक आए, but now they have realized that they need to tweak their business model a little. What happened was earlier it was groundbreaking products. ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो पहले कहीं नहीं था, किसी को नहीं पता था, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सोचा नहीं, ऐसा प्रोडक्ट बनाए. I believe some of you might have seen those two Steve Jobs movies. एक जिसका नाम है जॉब्स और उसमें है एश्टन कचर, और एक है स्टीव जॉब्स which is in which Michael Fassbender is there. अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये मूवीज दोनों नहीं देखी हैं तो I would suggest कि कल जब आप फ्री हो जाएं इस प्रोग्राम से, go to your Amazon Prime or Netflix account or whatever it is and watch these two movies or any one of these movies. It's an amazing. Jobs जो है एस्टन कचर वाली वो थोड़ा स्टीव जॉब्स की लाइफ का लंबा ड्यूरेशन कवर करती है, and it shows you what is the philosophy of Apple, how it was created, how it went into trouble and how it revived. और जो माइकल फैसबेंडर वाला मूवी है that talks about starts from the problem part कि जब एप्पल डिप हो रहा था और उसके बाद कैसे रिवाइव हुआ. उन्होंने शुरुआती ग्रोथ नहीं दिखाई है उसकी, but these two movies will show you that ये इतना जो आइकॉनिक कंपनी है ये कैसे क्रिएट हुआ. What is that philosophy on which Apple works? I mean, आपकी जनरेशन इस चीज को नहीं समझ सकती, but believe me, हमारे जैसे लोग जो या आपके पेरेंट्स, वो जनरेशन जो 1970s 80s में पैदा हुए थे, हमारे लिए जब iPods आए थे तब it was something unconceivable. We could not imagine कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है. And there is this very fine statement of Steve Jobs that he has given, that
don't give customers what they want because they actually don't know what they want. Of course, it's a controversial statement. इसके बहुत सारे discussions हो सकती हैं इसके ऊपर. But yes, in terms of ideation, यहाँ जो हम ideathon में जब बात कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत important है सोचने की. आप सोचकर देखिए इस बात को. Humans think from an existing frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जब आपसे किसी चीज के बारे में सोचने को कहा जाए ना, या इमेजिन करने को कहा जाए, तो आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के रेफरेंस में सोचते हैं. जैसे इफ वी वांट टू आस्क यू कि भाई हम एक नई कार बना रहे हैं, तो वो कार कैसी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, आप क्या चाहेंगे एक नई कार में, हम क्या करें? तो अब आप क्या करेंगे, आप और मैं, हमारे जैसे लोग, हम एग्जिस्टिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचेंगे. अच्छा, कार मतलब ऐसा एक बॉडी होता है, उसके अंदर सीट्स होती है, स्टीयरिंग होता है, इंजन होता है, उसमें पेट्रोल या डीजल जाता है, पहिए होते हैं. अब हम क्या सोचेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए, ज्यादा लग्जूरियस होनी चाहिए, केबिन्स के अंदर आवाज कम होनी चाहिए, ज्यादा माइलेज होना चाहिए, ज्यादा पावर होना चाहिए. हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कारों से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मांग रहे हैं. स्टीव जॉब्स ने कहा मारो गोली, वो चीज बनाओ जो कार की जरूरत को ही खत्म कर दे. What he did with iPods, I mean, think about this for a moment. उसके पहले तक ऑडियो कैसेट्स हुआ करते थे, सीडीज हुआ करते थे. क्या होता था, म्यूजिक रिकॉर्ड किया जाता था स्टूडियो में, इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे, और उस रिकॉर्डिंग को, उस साउंड को, साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट करके आपके टेप के ऊपर या सीडी के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया जाता था, इनक्रिप्ट कर देते थे. You had a tape recorder at home, you had a Walkman, you had a CD player. उसमें एक हेड हुआ करता था, एक मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसे हेड कहते थे. वो हेड के नीचे से जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेप या वो सीडी निकलता था, तो वो उसको डिकोड करता था, उस सिग्नल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को, और आपको वापस साउंड सिग्नल्स के रूप में आवाज सुनाता था. स्टीव जॉब्स सेड, व्हाई दिस कन्वर्जन? What if we create an instrument जहां पे ये दो बार जो sound to electromagnetic signal and electromagnetic signal to sound कन्वर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े. And he created iPod. अब जैसे ही ये जरूरत खत्म हो गई, तो आपके पास हार्डवेयर की जरूरत खत्म हो गई. Now your iPods could be as big as your match boxes. छोटे छोटे thin, wafer thin iPods create होने लगे. But this was because he fundamentally challenged the basic presumptions of a product category. क्या हम ये चीज सोच सकते हैं? I don't know. Some of you might, because Steve Jobs ऐसा थोड़ी कि कोई अवतार नहीं था. It was just his way of thinking. आप में से भी कई लोग होंगे ऐसे जो इतनी ही गहराई के साथ चीजों को, या इतने ही नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इन चीजों को सोच सकें. So we hope that there are many more people like Steve Jobs in India, because then we will be able to create some fantastic product. So मैं बिजनेस मॉडल चेंज करने की बात कर रहा था, तो स्टीव जॉब्स के अंडर में ये था कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, नए किस्म के प्रोडक्ट बनाओ. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स, इट स्टार्टेड रिड्यूसिंग, क्योंकि ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स बनाना भी एक लिमिट होती है कंपनी की, कितने बनाएगी. टिम कुक के अंडर में दे चेंज्ड इट. टुडे the biggest worry in the world is not about the megapixels of the selfie camera. Today people are more worried about the security of those photos which you take from those cameras. Think about it. Probably at your age, you'll not be able to appreciate it this much. Yeah, you'll not be able to think so deeply on it. But आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, यहाँ वहाँ जहाँ भी अपने फोटोज अपलोड करते हैं, यू ऑल नो दैट एनीबडी कैन डाउनलोड देम, राइट? टुडे यू नो दैट दोस कैन बी मिसयूज्ड. बट ऑफ कोर्स कुछ एज का फैक्टर है, और कुछ दूसरा ये है कि ठीक है, कौन करेगा मिसयूज, क्या करेगा मिसयूज करके. बट थिंक अबाउट पीपल हु आर इन बिजनेस.
think about people who are in jobs, think about people who have a career. They are worried about the data security. And जब हम बात करते हैं डेटा की, तो it is about photos, emails, messages, banking information, this, that, everything. और आज एप्पल ने अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा सा ट्वीक कर लिया है. एप्पल कहता है my products are the safest. Nobody can break into these products. With using my products, no website will be able to track you. और या आपका लोकेशन नहीं एक्सेस कर पाएगी जब तक कि आप उसे एक्सप्लिसिटली परमिशन नहीं देंगे. और अगर वो बैकग्राउंड से भी कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, हमारा प्रोडक्ट नहीं करने देगा. इनफैक्ट अगर इफ यू are aware, if you read news or online portals or anything, you know that last week Facebook and Apple had a very big fight over this particular new feature that Apple is launching in its products. जो अपना नया iOS का अपडेट ला रही है, उसमें क्या है, वो ला रही है ये फीचर कि without explicit permission of the owner, no app, कुछ भी कर ले, no app will be able to record any information of its customer. और इंटरनेट का सारा बिजनेस ही आपकी इंफॉर्मेशन को सेल करने के उसमें चलता है. So Facebook and everybody is worried. People are ready to pay premium for their security. Why not? So आप अपना बिजनेस मॉडल कैसे बनाएंगे कि कस्टमर आपको ज्यादा पैसा देने को तैयार हो और आपको कॉस्ट उसे बनाने में कम हो. Of course, these 3 points are, we have discussed this. I don't need to go into details of these key products. Okay, Ayushi, where are we on time? 12:31. So I have 1 hour Yes, more. yes. Huh? Yes, sir. You know, लेक्चर लेने वालों का यही इशू होता है, उन्हें टाइम का ध्यान ही नहीं रहता, लिए चले जाते हैं. No, sir. Everyone is enjoying your Okay, webinar. thank you. Okay, तो अब हम जब बात कर रहे हैं कि बिजनेस मॉडल में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, so let us create a fantastic new business model. You can, but what is the need? Before reinventing the wheel, let us look how many wheels are already available in the market. And can one of those wheels be used in your this dream motorcycle, this dream car, this dream vehicle of your business? क्या इसमें कोई existing wheel use किया जा सकता है? Let's see. Okay, how many are aware about this second thing? I don't know. The Tim Ferriss show. I don't know कितने लोग सुनते होंगे इससे, but this is one of the most popular podcasts all over the world. YouTube makes money from advertising. Content आप बनाते हैं, content आप देखते हैं, बीच में YouTube पैसा बनाता है. Newspapers and news portals, they have these news agencies or they're reporters. They themselves create content. Companies give advertisements in these newspapers and they make money out of those advertisements. Podcasts. Podcast person creates content, delivers it, and there are sponsors for these podcasts. This business model is called advertising business model. So what you do is that you create content that people want to read, watch, listen, and you earn revenue from advertisers who want to reach your audience. This is a very good business model for freelancers especially. If you can create content जिसे लोग सुनना चाहें, देखना चाहें, पढ़ना चाहें, so you have the audience, captive audience, and people will come to you. People will come to your blog. People will come to your website and take ads there. They'll pay you. But we'll put the ad, we'll design the ad, we'll put the ad. You just allow us to do that on your website or on your blog, on your web page. And this
जैसे जैसे आप वैल्यू क्रिएट करते जाएंगे, जैसे जैसे कस्टमर बेस बड़ा होता जाता है, यू कैन अर्न ह्यूज। आई मीन ओके, आज ये जो कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं, ये आज हमें लगता है, प्रोबेबली सम ऑफ यू माइट थिंक इज टाइम्स ऑफ इंडिया इज लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, बट टाइम्स ऑफ इंडिया someday started as a small 4-pager leaflet in Bombay by Mr. Bennett and Mr. Coleman before independence. You know, the Times of India is the brand, the company is Bennett Coleman Private Limited. So Bennett and Coleman ने स्टार्ट किया, और आपको लगेगा आज टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ी शानदार चीज है, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर ग्रुप है, but you know how it landed with its present owners? आज जो इसके ओनर हैं, या मतलब मेन शेयर होल्डर हैं, आप उन्हें जो भी कहना चाहें, मिस्टर समीर जैन, उनकी शादी हुई थी इंदु जैन से, जो कि एक्चुअली पहले इंदु डालमिया हुआ करती थी। डालमिया फैमिली के पास था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप न्यूज़पेपर, और उन्होंने वो न्यूज़पेपर समीर जैन को दहेज में दे दिया था कि बाकी तो सब हमारे अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, रिफाइनरी, डेयरी, दिस दैट एवरीथिंग, ये एक प्रोडक्ट है, अखबार कोई पढ़ता है नहीं, कुछ होता है नहीं, लाओ यही दहेज में दे दो। तो उन्होंने इंदु डालमिया के साथ समीर जैन को दहेज में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप दे दिया था। एंड ऑफ कोर्स ये समीर जैन की फिर बिजनेस एक्यूमेंट थी कि आज उसने उसे वो बना दिया कि डालमिया ग्रुप बंद हो गया, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप ऑफ इंडिया। टेकिंग एन एड इन टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ हैरोइंग एक्सपीरियंस। आपको 5 से 6 वीक्स का वेटिंग रहता था। ऑफ कोर्स अभी तो कोविड की वजह से सबकी हालत खराब है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस टाइम, बट ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज टाइम्स ऑफ इंडिया, इवन फॉर प्लेसेस लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे, जो कि उनका सबसे मेजर सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट है और सबसे कॉस्टली मार्केट भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे के फ्रंट पेज पर आपको अगर एक ऐड लेना हो, जो ये इस में दिखाई दे रहे हैं ना साइजेस आपको, या क्वार्टर पेज ऐड लेना हो, इट वुड कॉस्ट यू 3.5 to 4 लाख रुपीज फॉर वन डे। 3 से 4 लाख रुपए का एक दिन का ऐड आता था, और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से करीब 8-9 साल पहले की, when I was with Times of India. I worked with Times of India. In fact, I started my corporate career with Times of India. And you know, the first time we had our induction training, we realized that this is the costliest thing that is selling in India. Times Life आता है संडे के दिन, एक फीचर ग्लेज्ड न्यूज़पेपर वाला। Yes, उस वक्त 2005 I started with Times of India. उस वक्त इसका जो रेट हुआ करता था टाइम्स लाइफ का was 5,500 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इतने से ब्लॉक का रेट होता था 5,500 रुपए। अगर आप एक क्वार्टर पेज ऐड लेते थे, इट वुड हैव कॉस्ट यू अराउंड 7.5 लाख रुपीज फॉर वन संडे। इमेजिन, सिर्फ एक संडे, सिर्फ एक न्यूज़पेपर का एक ऐड। नाउ थिंक अबाउट द बजट ऑफ वुडलैंड। वो वुडलैंड जो आपको साल के 52 संडेज टाइम्स लाइफ में हमेशा एक ऐड होता था। इमेजिन द काइंड ऑफ मनी वी यूज्ड टू मेक। You know, I was in time with Times of India Pune, and there were days when we used to cross 1 crore rupees revenue in a day. जब एक दिन अखबार में छपे हुए एड्स की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती थी। Those days we used to get a special message that okay, today the team has done great. Today's entire revenue realization is 1 crore, 5 lakhs, 7 lakh, 8 lakhs. That is the kind of money you can make in this moment. IPL चल रहा है, and this man is all over the ads. इनफैक्ट मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी भी टीम का मैच देखो तो उस टीम का बैट्समैन बॉलर ज्यादा नहीं दिखाई देता, ये रणवीर सिंह ज्यादा दिखाई देते हैं आईपीएल के मैचेस के दौरान। राइट, जेडी मार्ट B2B मार्केट प्लेस है। मेरे पास कुछ सेल करने के लिए है, आपको वो चीज खरीदनी है, आप हमारे मैं अपने आपके पोर्टल पे रजिस्टर्ड हूँ जेडी मार्ट पे, आप वहां आते हैं, मुझसे चीज परचेज करते हैं, मुझे पैसा मिलता है, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है और जेडी मार्ट को अपना कमीशन मिल जाता है।
ये दूसरा नाम जो है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी अवेयर अबाउट दिस. नाइट फ्रैंक is one of the world's biggest real estate brokerage firm. What they do is commercial जो properties होती है ना, जैसे Infosys है. अब Infosys को अगर जयपुर में ऑफिस बनाना है तो Infosys नहीं ढूंढता कि मुझे कहाँ ऑफिस मिलेगा, क्या होगा. वो इन एजेंसीज को एम्पैनल करते हैं कि भाई you work as our brokerage partner, we'll give you some money out of the deal and you arrange whatever we are looking for buying. So you connect buyers and sellers, help facilitate a transaction and earn money. आज आपका जो e-commerce model है, Amazon, Flipkart वगैरह, everybody, what they are doing, same thing. Amazon तो कुछ बना नहीं रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट कंपनी कुछ बना रही है. मुझे घर में एक लैंप लगाना है किसी कॉर्नर में, मैं Amazon पे जाता हूँ, वो लैंप खरीदता हूँ, उसको पैसा बेचता हूँ Amazon को, Amazon उसमें से अपना पोर्शन रख के उसे आगे दे देता है पैसा. No need to produce anything, just create that service model around it. Okay, now this is a model which is more popular in West, but yes, it is time that India में भी अब ये model बहुत popular होने वाला है. This is called concierge services. Concierge आपने नाम सुना होगा या ये term देखा होगा most of the times hotels के अंदर एक concierge desk होता है जहाँ पे वो आपको help करते हैं to create your travel plan, bookings के लिए वगैरह. What Europe and US has is that these are these firms who take care of your entire needs like these, and they charge you good money. So आपको कहीं भी किसी वेटिंग लाइन में खड़ी होने की जरूरत नहीं, आपके लिए हर चीज आगे से आगे बुक करके तैयार रखी जाएगी. And these firms specialize in those. And if you think they are small firms making less money, छोटा पैसा रहेगा, quintessentially is world's third biggest firm in this category. And last year नहीं, मतलब last to last year, COVID से पहले, their annual revenue was $202 million. $200 million से ज्यादा का revenue कमा रहे थे वो 3 साल पहले. And imagine in India with the VIP culture, हमारे यहाँ तो वो क्या बोलते हैं, पार्षद भी अपनी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पार्षद का वो लगा के घूमता है. Imagine with the kind of VIP culture, इस concierge service के लिए कितना स्कोप है, right? Okay, crowdsourcing, startups के लिए एक तरीका जिसमें हम देखते हैं. Crowdsourcing में बहुत सारी चीजें होती हैं, believe me. आपको काम करना है, बिजनेस आइडिया वैलिडेट कराना है, कोई ग्राफिक्स बनवानी है, दिस दैट, 1000 तरीके के काम हो सकते हैं. हालांकि स्टार्टअप्स के सेंस में हमें क्राउडसोर्सिंग समझ में आता है फंड रेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्राउडसोर्सिंग को स्टार्टअप्स अधिकतर फंड रेजिंग के लिए यूज करते हैं, बट दैट इज ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ क्राउडसोर्सिंग. देयर आर वेरियस डिफरेंट यूजेस इन व्हिच यू कैन क्रिएट दिस मॉडल and create a business out of it. Franchising. Create a business and then develop SOPs and lend it to others. Don't put your money in expansion. Let others put money in expansion. You just give them your brand name and the customer delivery system and take commission on it. Most of the people would not even, the world would not even realize कि ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है. I mean, हम तो क्योंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस को पढ़ रहे हैं, बिजनेस को समझ रहे हैं, तो हमें पता है. बट जो जनरल पब्लिक है, उनमें से कितनों को पता होगा कि मैकडॉनल्ड्स के जो हजारों स्टोर्स हम देखते हैं चारों तरफ, वो मैकडॉनल्ड्स के ओन नहीं है, पैसा किसी और ने लगाया है. सबवे के स्टोर्स में पैसा सबवे ने नहीं लगाया है. सबवे ने तो सिर्फ सैंडविच बनाना सिखाया है और वो 1000 सवाल पूछना सिखाया है जब कोई सबवे में कोई कस्टमर चला जाए, राइट? आप में से जो भी सबवे गए होंगे, सर ब्रेड 12 इंच, 6 इंच, 9 इंच, व्हीट, बाट, वो क्या कहते हैं, बार्ले, ओट, इसमें फिर ये लगाऊं, वो लगाऊं, ये डालूं, वो डालूं, वो डालूं, ये डालूं, थोड़ा डालूं, कम डालूं, और फिर उसके बाद में वो आपको वो प्रोडक्ट बना के देगा. बाय द एंड ऑफ दैट यू फील कि मतलब एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू हो गया आपका.
Yes, sir. right? Okay, the new age businesses, Hotstar, Spotify, even Harvard Business Review. Freemium, थोड़ा पोर्शन फ्री दो, कुछ चीजें ऐसी दो जिसके लिए पैसा ना लगे कस्टमर का, उसे थोड़ी आदत पड़ जाए अपने प्रोडक्ट की, और बाकी सब प्रीमियम पे बेचो. सो फ्री एंड प्रीमियम. स्पॉटिफाई, गाने सुनिए, इवन एवरीबडी यूजेस दैट. स्पॉटिफाई हो या Amazon म्यूजिक हो या गाना हो, एवरीबडी डज दैट. गाने सुनिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन ऐड भी सुनने पड़ेंगे साथ में, राइट? ऐड हटाने तो पैसा दो, ऐड हटा देंगे हम. यूट्यूब भी उसी पे आ गया है अब. यूट्यूब को थोड़ा लेट रियलाइज हुआ ये कि भाई ये भी हो सकता था. वो स्पॉटिफाई और इन लोगों से सीखा यूट्यूब ने, और आज यूट्यूब भी कहता है कि भाई आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए तो एड्स नहीं दिखाई देंगे. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, आई मीन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स वुड नो दिस. Yes, आप sir. HBR के वेबसाइट पे रजिस्टर कर लीजिए. With one email ID, you can access 3 free articles every month. You can read them. आप 3 आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं. उससे ज्यादा करना है तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. ओके बॉयज, पहले 2 फीचर्स के लिए, और फिर प्रिंटर्स. 8,000 में पूरा प्रिंटर अवेलेबल है मार्केट में, कलर प्रिंटर, वेरी गुड. और उसके बाद में उसकी इंक आएगी 2,500 की, जो 2 महीने में खत्म हो जाएगी. जिलेट मार्क 3 रेजर लेने जाओ, 150 रुपीज का रेजर आएगा, और उसके बाद में 200 का एक ब्लेड आएगा. इनफैक्ट ये जो मॉडल है इसको कहते ही इसी के नाम है. जिलेट ने ही सिखाया ये दुनिया को कि जो ड्यूरेबल पार्ट है, जो मेन कंपोनेंट है, उसको बिलो कॉस्ट सेल करो. एक बार कस्टमर ने वो परचेज कर लिया, अब उसके बाद उसे उसके अंदर जो रीयूजेबल कंपोनेंट है वो बार बार परचेज करना पड़ेगा. उसकी प्राइस हाई रखो, करना ही पड़ेगा, क्या करेगा. मार्क 3 के अंदर और कोई ब्लेड लगेगा ही नहीं, तो परचेज करेगा. प्रिंटर के अंदर आप इंक, ऑफ कोर्स इंडिया, वैसे इंडिया बहुत टैलेंटेड कंट्री है, हमने इंक भी वो डुप्लीकेट वाला लोकल वाले यूज करना चालू कर दिया. लेकिन फिर कंपनीज भी स्मार्ट है. कंपनीज ने ये किया कि भाई अगर आपके प्रिंटर के इंक बॉक्स का सील टूटा, वो खुला, और हमारे पास कंपनी में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने इंक खरीदी थी, तो आपकी वारंटी वॉइड हो गई. इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं कंपनीज. बट यस, दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल. लेकिन ये वही कर सकते हैं जो कि प्रोडक्ट का वो पुल क्रिएट कर सके, या वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि जिसके बिना काम चल नहीं सकता. मेन प्रोडक्ट जो ड्यूरेबल पार्ट है वो बेचो महंगा, और वो इस पब्लिक खरीदेगी क्यों? क्योंकि उन्हें ये दिखाई देगा कि भाई इसके अंदर जो रीयूजेबल कंपोनेंट है ना, वो सस्ता मिलेगा. सो अगर मैं बुक खरीदने जाऊंगा, मैं बुक्स खरीदता हूं, मैं परचेज करता हूं, मैं रीडर हूं, मैं हर महीने कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूं, एंड आई रियलाइज कि जो बुक मुझे 600 रुपए में फिजिकल बुक मिलती है, पेपर बैक एडिशन, वो किंडल में 300 350 में ही मिल जाता है. And then there are free books also. Then there is a membership of a library type system also in Amazon Kindle. तो लाओ मैं एक 5,000 का, 8,000 का, 12,000 का, 15,000 का Kindle खरीद लेता हूँ. कंपनी उस प्रोडक्ट के सेल्स पे पैसा कमाती है, और कस्टमर उसे इसलिए परचेज करता है कि उसे ये पता है कि भाई मैं 12,000 का Kindle खरीदूंगा, और अगर मैं साल की 12 बुक्स भी पढ़ता हूँ तो मैं साल 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर उसका पैसा निकाल लूंगा. एंड ऑफ कोर्स ईज ऑफ यूज भी है, because I can read anywhere, I can purchase it anywhere, within a moment it is downloaded on my Kindle, right? So you sell the durable component at a high price, then keep the margins low. You can do that. So these were some of the business models. Okay, there are various others, और भी बहुत सारे हैं, और भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस क्रिएट करके. ये पार्ट जो था मैंने आपको ये सिर्फ इसीलिए दिखाए थे ये एग्जांपल्स, just to broaden your thinking, कि you can create various combinations out of your raw material
योर फिनिश प्रोडक्ट, द सर्विस कंपोनेंट ऑफ इट, और इन सब के मिक्स एंड मैच क्रिएट करके आप 1000 तरीके से बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। बट उसे करेंगे कैसे? इट कैनॉट बी एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। ये कविता नहीं है कि आप बैठे सोचते रहे और बस अचानक से शब्द सूझने लगे और आप लिखने लग गए। इट्स नॉट लाइक दैट। यू विल हैव टू थिंक एनालिटिकली। मतलब इट वुड बी अ मिक्स ऑफ योर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, वेयर यू विल हैव टू थिंक क्रिएटिवली एंड देन पुट इट टू अ लॉजिकल टेस्ट। ओके, कोई क्रिएटिव आइडिया आया और फिर उसे लॉजिकली टेस्ट भी किया कि दोनों तरीके से मैच होता है क्या। सो दिस इज वेयर वी ब्रिंग यू टू योर बिजनेस मॉडल कैनवस, वो फ्रेमवर्क जिससे आप अपने बिजनेस आइडिया को, या जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपने थोड़ी देर पहले आपके दिमाग में रहा होगा जो आपने प्रेजेंट किया था, उसे एक्चुअली एक बिजनेस की शक्ल कैसे देते हैं। दिस इज व्हाट अ टिपिकल बिजनेस मॉडल कैनवस लुक्स। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई कॉपीराइट नहीं है इसके ऊपर, स्ट्रेटेजाइजर कंपनी ने बनाया था उसको और अवेलेबल कराया। दिस इज ऑल ओवर द इंटरनेट, यू कैन इजीली डाउनलोड इट। मैंने उसका ये वो कॉपी यूज किया है जिसमें ये थोड़ा enlarge लिखे हुए हैं सो दैट इट इज इजीली विजिबल ऑन योर स्क्रीन्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड, रीड दीज हेडिंग्स। हम इन्हें डिस्कस करते हैं अभी, बट जस्ट रीड दीज हेडिंग्स, ट्राई टू perceive this page. What this business model canvas does or how it helps is, आप लोगों ने probably somewhere in different context you would have read this or you would have listened to it, that things that we write give us more clarity, right? So ये आपने probably goal setting में बहुत सुना होगा। If you write your goal somewhere, it would give you a clearer picture that हमें क्या करना होगा इन goals को achieve करने के लिए, or whether these are achievable or not. Same thing is this thing. मैं दुनिया में कुछ ऐसा बनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। Very good. See, as mentors, we very often come across these young enthusiastic people who will ask for a meeting and they would be like, "Sir, मेरे दिमाग में एक startup idea है." Okay, आइए बात करते हैं। सर, मैं एक ऐसी ऐप बनाना चाहता हूँ जिससे कोई भी है ना किसी तरह की सर्विस मंगा सके। सर्विस मतलब जैसे किसी को सर बार्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एंड वी आर लाइक, मतलब अर्बन कंपनी जैसा। नहीं सर, अर्बन कंपनी क्या करता है ना, उसमें आप वो करते हैं, हम ऐसा नहीं, हम ये करना चाहते हैं। बट देन वी आर लाइक, हाँ वही अर्बन कंपनी करता है, तुम जो बोल रहे हो एग्जैक्टली वही करता है। ठीक है सर, मैं कुछ और सोच के आता हूँ। It is good. Their enthusiasm is very good. In fact, we love that enthusiasm. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब वो उसके साथ होमवर्क नहीं करते, वो खाली enthusiasm पे काम करते हैं। You know, it is like that heroic thing that you do कि जब हमारी बहुत सारी मूवीज वगैरह में और हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी जगह ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, हमारे सिपाहियों के पास तलवारें थी और सब दौड़ पड़े उनकी तरफ, राइट? और उन्होंने गोली मारी और बात खत्म। सो इफ यू रियली वांट टू एक्सेल, अगर आप वाकई में अपना स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, तो स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। आपका जो जोश है, आपका एंथुसियाज्म है, बहुत काम आएगा। इट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको ग्रो करने में, आपको आगे बढ़ने में। इनफैक्ट जब आपके सामने मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों को सॉल्व करने में। लेकिन सिर्फ एंथुसियाज्म से काम नहीं चलेगा। You will have to deliver something real to your customers, to your shareholders. In fact, अभी आप जब फंडिंग रेज करने की स्टेज में आएंगे, तब जो फंड लगाएगा, जो एंजल इन्वेस्टर होगा या जो वेंचर इन्वेस्टर होगा, वीसी होगा, वो ये कहेगा कि मेरा पैसा मैं लगाता हूँ, चलो मैं 10 लाख लगाता हूँ, 50 लाख लगाता हूँ, 1 करोड़ लगाता हूँ, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट।
लेकिन वह कमा के कैसे दोगे वापस? वापस तो देना पड़ेगा ना। या प्रॉफिट कैसे कमाओगे? चलो हम प्रॉफिट में शेयरिंग करेंगे, मुझे ये नहीं चाहिए अमाउंट, मुझे तो प्रॉफिट में शेयरिंग चाहिए, लेकिन प्रॉफिट करेंगे कैसे हम? If you do not have a clear idea of your business, you'll not be able to tell them. And if you'll not be able to tell them, then how will anybody give you money? इनफैक्ट वीसी को, एंजल इन्वेस्टर को तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। जस्ट ट्राई एंड आस्क योर पापा, फादर से बात करके देखो कि पापा मुझे 10,000 रुपए दे दो, सिर्फ 10,000 ही मांग के देखो, पापा मुझे 10,000 रुपए दो, पापा कहेंगे ले ले, क्या करेगा इसका? मैं कुछ बड़ा करूंगा। क्या? किधर खर्च करना है तुझे? और अगर आप उन्हें ठीक से नहीं समझा पाएंगे कि आपको ये 10,000 क्यों चाहिए, with a valid reason and a roadmap, no chance that you are going to get that money. When without a proper roadmap, your father is not going to trust you. How will a venture capital investor or an angel investor is going to trust you, who doesn't even knows you? So you need a roadmap. और ये जो मॉडल है, ये आपको वही बनाने के काम आता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है, वैल्यू प्रोपोजिशन। Now for the management and commerce students, they understand this term, at least उन्होंने सुना होता है इस term को। Engineering or probably other computer guys who have not come across it, value proposition, I'll explain you very briefly, is what value are you going to add to the life of your customer? That is your value proposition. जैसे ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? ये मुझे दुनिया से कनेक्ट करने को फैसिलिटेट करता है, दुनिया से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। एक, ये मुझे काम जल्दी और आसानी से करने में हेल्प करता है, और ये मुझे वर्ल्ड को की नॉलेज या वर्ल्ड की हैपनिंग्स को एक्सेस करने को हेल्प करता है थ्रू इंटरनेट। ये वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं, ये वैल्यू है इस लैपटॉप की। मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि अ कस्टमर नेवर परचेजेस अ प्रोडक्ट, he or she purchases the benefit that comes along with that product. I mean, think about it. पेन, ये पेन मैं इसलिए परचेज नहीं करता हूं कि पेन सालों से हम परचेज करते आए हैं और मैं परचेज करता रहूंगा। ये पेन मैं इसलिए परचेज करता हूं बिकॉज इट हैज अ यूटिलिटी, इट हैज अ बेनिफिट, कि मेरे दिमाग में कुछ आया, मैं उसे लिख सकता हूं। जो कंपनीज इस चीज पर कंसंट्रेट कर पाती हैं कि जब भी मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने पेन खोला और मैंने फटाफट लिख लिया, इंक नहीं जमेगी, लिखा हुआ अच्छा जाएगा, फीलिंग स्मूथ होगा, इसको पकड़ना बड़ा कंफर्टेबल होगा, they will make good money, they will sell more as compared to their competitors. But then there would come a time when somebody would say, क्या जरूरत है पेन से लिखने की, फोन रिकॉर्ड कर लो, टाइप कर लो, right? And suddenly your utility of pen is lost. Now you need pens for decoration purposes. जेब में लगा हुआ पेन, आई मीन अगर एरो है, सॉरी एरो नहीं, मेरा मतलब था पार्कर है जिसमें वो एरो का क्लिप होता है। भले ही मुझे दिन भर में 2 लाइनें भी नहीं लिखनी होंगी, लेकिन अगर वो पेन मेरे पॉकेट में लगा है और उसका वो जो पॉइंट आपको एरो बाहर दिख रहा है, इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट मी टू यू। पे कार्डे है, राइटर है, तो वो पेन्स आर कन्वेइंग समथिंग अबाउट मी।
रिस्ट वॉचेस के साथ ऑलरेडी हो गया. टुडे वी डोंट नीड रिस्ट वॉचेस बिकॉज हर जगह टाइम दिखाई देता है ना, मोबाइल पे दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में टाइम दिखाई देता है. यू डोंट नीड अ रिस्ट वॉच फॉर लुकिंग एट टाइम. टुडे रिस्ट वॉचेस हैव बिकम फैशन एक्सेसरीज. आपके ड्रेसेस के साथ मैच होने चाहिए. ऑफिस वियर का वॉच अलग तरीके का है, दिन भर में देखता भी नहीं उसको. इनफैक्ट देखो अभी मैंने पहना भी नहीं है. व्हाई? बिकॉज आई डोंट नीड इट राइट नाउ. हाँ, मैं कभी जब बाहर जाने लगूंगा तब फिर से होगा कि ओके, कैजुअल वियर का एक अलग रिस्ट वॉच होगा, ऑफिस वियर का एक अलग रिस्ट वॉच होगा. सो व्हाट इज दैट वैल्यू दैट योर बिजनेस इज गोइंग टू गिव? आप ऐसा क्या करेंगे कस्टमर की लाइफ में कि जिससे उसे लगे कि हाँ कुछ हुआ, कुछ मिला मुझे. That is your value proposition, and for a company it is very important to think on first about this as a startup founder. Then you think about your customer segments. Who would be my customers? Will all my customers pay for the product? Can I create a model in which they need to pay? Or should I create a model जिसमें कुछ पार्ट के लिए वो पे करें, कुछ पार्ट के लिए ना पे करें, कुछ टाइप ऑफ कस्टमर्स पे करें, कुछ टाइप ऑफ कस्टमर्स ना पे करें? बिकॉज वैल्यू प्रोपोजिशन और ये कस्टमर सेगमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरकनेक्ट है. थिंक अबाउट इट. आपके हर किसी कस्टमर को हर वैल्यू प्रोपोजिशन अपील नहीं करेगा, बिकॉज वैल्यू उस चीज की जाती है जो चीज आपके पास कम हो या जो मुश्किल से मिले. वैल्यू उसकी होती है. जैसे टुडे राइट नाउ व्हाट आर वी वैल्यूइंग मैक्सिमम? वी आर वैल्यूइंग आवर सेफ्टी, हाइजीन, हेल्थ, वेलनेस. अभी एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करना या एक ऐसा वेंचर क्रिएट करना जो कहे कि सर ये आपका टाइम बचाता है, अभी नहीं. क्यों? क्योंकि टाइम ही टाइम है. जाना कहाँ है, करना क्या है? ऑफिस कम्यूट में और जनरल ऑफिस एनवायरनमेंट में जितना टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड होता था वो सारा बच रहा है. तो टुडे टाइम इज नॉट ऑफ मच वैल्यू. टुडे हेल्थ एंड हाइजीन इज मोर वैल्यूएबल. हाँ, प्रोबेबली 1.5 years बैक और प्रोबेबली 2 years डाउन द लाइन, क्योंकि ठीक है पेंडेमिक है लेकिन कभी तो खत्म होगा ना. वो अभी व्हाट्सएप पे वो चल रही है ना, वो अमिताभ बच्चन वाली पोएम, अमिताभ बच्चन ने जो बोली है उनकी वॉइस में है. हर दूसरे दिन कोई ना कोई अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड कर देता है, वो मुश्किल है ये वक्त मगर गुजर ही जाएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, इस तरह करके कुछ लाइन्स है उसकी. एंड इट्स ट्रू दैट टुडे राइट नाउ वी आर इन अ वेरी ट्रबल्ड सिचुएशन. बट ठीक है, इट विल पास. प्रोबेबली 6 months डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन, but it will end someday. I read a very comic thing about it. Ki this too shall pass. Okay, probably it might pass as kidney stone, but still it will pass. It will go away. Don't worry. थोड़ा दर्द है, थोड़ी तकलीफ है, but we'll come out of it. People who stay in cities, double working couples, जहां हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 8 बजे ऑफिस से वापस आते हैं, उनके लिए वैल्यू टाइम और कन्वीनियंस है. उन्हें आप कट वेजिटेबल्स भी अगर बेचेंगे ना, कंप्लीट वेजिटेबल की जगह, रॉ वेजिटेबल की जगह, तो वो उस पर भी प्रीमियम देने को तैयार हो जाएंगे. आप 20 रुपीज अ केजी का कोई भी वेजिटेबल होगा, आप उसे कट करके, उसे सेलोफेन उसमें रैप करके सेल कर ही रहे थे. इट वॉज अवेलेबल, राइट?
वो 20 रुपीज वाला आप 35 रुपीज में सेल करिए, वो आराम से परचेज करेंगे। जयपुर में तो अभी ये बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है, बट व्हेन वी वर इन पुणे वी यूज्ड टू सी दिस in front of every supermarket or every big retail store, वहां पे ये इडली एंड डोसा के बैटर बनाने वाले बैठे रहते थे, उनकी मशीन्स में वो बैटर बनाते रहते और आपको पैकेट्स में सेल करते रहते थे। ऑफ कोर्स थोड़ा प्रीमियम चार्ज करते थे, बट पीपल वर बाइंग इट। व्हाई? बिकॉज़ पीपल डिडंट हैव टाइम कि पहले एक दिन पहले वो दाल गलाई, उसके अगले दिन उसे पीसा, फिर उसका ये किया, फिर उसमें वो किया, तब तीसरे दिन जाके इडली बनेगी। Nobody has time. Take money from me. In fact, in Pune, we also used to purchase these things. वो ये होता है ना, what is it called? जो hard beans होते हैं, जैसे छोले, राजमा और इस तरह की चीजें, ये वहां पे ठेलों पे भीगे हुए मिलते थे। सो अब भाई, जैसे अभी तुम्हें मन में आया, सेशन से उठे और मम्मी बोला मम्मी राजमा खाना है, तो मम्मी वुड बी लाइक कल बताना चाहिए था, तू कल शाम को बोलता या बोलती तो मैं रात को राजमा भिगोती, सुबह वो गलता, फिर आज बनता। एंड दोज पीपल वर सेलिंग इट रेडी। जाओ बाहर 250 ग्राम खरीद के ले आओ, फटाक से बना लो। सो किस कस्टमर सेगमेंट को क्या वैल्यू करता है, ये समझना होगा आपको। आप किस कस्टमर सेगमेंट को सर्व कर सकते हैं, कैसे सर्व करेंगे, वो क्या मेरे बिजनेस की एक्टिविटीज होंगी जिससे मैं अपने इस कस्टमर सेगमेंट को ये वैल्यू डिलीवर करूंगा। मैं क्या करूंगा एग्जैक्टली? फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसके क्या फीचर्स होंगे, उसके वो किस तरीके से काम करेगा वो प्रोडक्ट। अगर सर्विस है तो सर्विस कैसे डिलीवर होगी, कौन डिलीवर करेगा। ओके, शुरुआत में तो प्रोबेबली मैं खुद करूंगा, 2 कस्टमर्स, 5 कस्टमर्स, 15 कस्टमर्स के लिए, या जो हमारी को फाउंडर्स की जो कोर टीम है, हम 3-4 लोगों की, वो खुद करेगी। उसके बाद कौन करेगा, कैसे करेंगे, क्या क्या की एक्टिविटीज उसमें हम करेंगे। जैसे एक प्रोडक्ट अगर हम सेल करेंगे कस्टमर को, तो उसके साथ हम एडिशनली उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, वो क्या करते हैं, क्या हम भी वो सब कर सकते हैं, क्या हमारे पास बैंडविड्थ है वो करने की। और बैंडविड्थ से मेरा मतलब है, क्या हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, क्या हमारे पास मैन पावर है वो चीजें करने की, या एक्सपर्टीज है वो करने की। क्या मेरे कस्टमर को जो मैं सर्विस डिलीवरी करूंगा, अगर उसमें कोई कमी रह गई एंड कस्टमर इज नॉट हैप्पी विद इट, क्या मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दूंगा। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा तो वो क्या बाउंड्री होगी जहां मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ इसके ज्यादा प्रॉब्लम हो इससे, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं। If I sell medicines to my clients, if I am Apollo Pharmacy, if I sell medicines, should I add doctor consultation also, or should I not? Should I say कि नहीं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और प्लेयर्स हैं जो ये कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना जो कोर फंक्शन है उसको डाइल्यूट नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा डॉक्टर कंसल्टेशंस। व्हाई? बिकॉज अगर आपको डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से मिलिए। आई डोंट वांट टू डू दैट। प्रैक्टो शुरुआती प्लेयर था इस फील्ड का, उसने स्टार्ट ही डॉक्टर्स की बुकिंग से किया था। उस वेबसाइट पे आप डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट ले सकते थे। आज उसने अपने उस मॉडल को ट्वीक किया, एक एक्टिविटी चेंज की। आज आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं उनके साथ, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। प्रैक्टो को आसानी रही क्योंकि उसके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस था। अपोलो फार्मेसीज क्या करती हैं, आपको एमआरपी पे मेडिसिन देती है, राइट। और उसके साथ में आपको दूसरे लाइफस्टाइल
जो प्रोडक्ट्स हैं या जो ओटीसी ड्रग्स जिन्हें कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ऐसी चीजें, मतलब ड्रग्स मतलब मेडिसिन एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो आप मेडिसिन शॉप से परचेज कर सकते हैं, वो उसे एमआरपी पे सेल करते हैं और आपको और आपका एक लॉयल्टी बोनस की तरह आपको उसके ऊपर 10% पॉइंट्स आपके अकाउंट में ऐड करते जाते हैं, जो कि आप रिडीम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ अपोलो फार्मेसी जब लॉकडाउन हुआ तो मेडिकल शॉप्स को अलाउड है खुलना, लेकिन अपोलो डिसाइडेड कि भाई लेट्स स्टार्ट होम डिलीवरी। ठीक है, मेडिसिन शॉप्स को अलाउड है खुलना, ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए कस्टमर आ जाएगा। अगर उसका ब्लड प्रेशर का इश्यू है और उसे महीने की ब्लड प्रेशर की दवाइयां चाहिए, रोज सुबह शाम एक गोली खाता है वो, या शुगर की गोली खाता ही है, तो वो आएगा, परचेज करेगा। बट let us make this thing a little easier for the customers. Let's start home delivery. How do we do that? हर अपोलो फार्मेसी को एक वो मिल गया, कॉलिंग लिस्ट उनके कस्टमर्स का, जहां से वो कॉल करते रहते हैं। अगर आप लोगों में से कोई जो अपोलो फार्मेसी के कस्टमर्स होंगे और अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा, तो यू माइट हैव गॉट कॉल्स कि सर वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस अपोलो फार्मेसी स्टोर, कोई भी मेडिसिन का रिक्वायरमेंट हो बताइए, विल रिफिल इट at your home. Yes. So they define their key activities and they keep changing it as the market requires. I think there's somebody who has put a question. Garima has asked, sir, as you said that most important thing in today's health and hygiene. So what is the durability of the product like face masks, sanitizers, etc. in the future for making money if COVID-19 has vanished? Very good. Good question. In fact, Garima, this is a very valid question. Okay, Sahil has also put something. Today, Practo, Liberté, M-Fine like big giants in medical business. Can we enter this market with changing a little bit business model? Okay, let me first take Garima's question, then Sahil's. Or can I finish this part and then we'll take questions? Right? अरे Yes, Garima का yes, question no आ issue. गया। सर वो आंसर पे आ गया। अच्छा, आंसर पे चला गया। Yes, Okay, sir. okay, okay. So we'll take all the questions in the end, है ना? तो उससे so that Yes. हो सकता है multiple questions के answers मिल जाएं। Okay, how much time I'm left with? Sir, still. 20 minutes. Yes, sir. थोड़ा सा spill over कर सकते हैं? Yes, sir. Sure, sir. No issue. Right, 5 minutes approximately. Yes, sir. No issue. क्या करूँ? टीचर हूँ ना, आदत नहीं जाती। टाइम पे लेक्चर खत्म ही नहीं होता। No issue in that. Okay, चलो। Customer relationships. Are you in business of a kind of product which is very low involvement? अगर ऐसा होगा तो आपका कस्टमर रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता, आप क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे। एंड इफ योर प्रोडक्ट इज ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट नेचर, देन यू कैन क्रिएट अ कस्टमर रिलेशनशिप। ये तो पहली बात हुई। अब जब यू कैन क्रिएट अ कस्टमर रिलेशनशिप, तो उस कस्टमर रिलेशनशिप के दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक तो उसकी डेप्थ और एक उसकी कॉस्ट, क्योंकि आपके लिए भी कॉस्ट होगी वो कस्टमर रिलेशनशिप। जैसे इट इज सेड, इट इज अ कॉमन थिंग, जैसे रेस्टोरेंट्स और इन सब में होता है ना, आप अपना फीडबैक फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी फिल कर दीजिए एंड दे विल सेंड यू अ मैसेज इस रेस्टोरेंट की तरफ से, हैप्पी एनिवर्सरी। ओके, गुड। मैसेज कॉस्ट नहीं करेगा। क्या आप कुछ और एडिशनल दे सकते हैं? 20% discount if you come to our restaurant today, or if you organize your marriage anniversary dinner or party at our place. Okay, now it will cost you something, or probably a free gift. अगर आपने मैरिज एनिवर्सरी में ईयर भी फिल करवाया था और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर दिखा रहा है कि भाई अब इसको इस साल 25 इयर्स हुए इसकी एनिवर्सरी को, तो आप उसे क्या कोई गिफ्ट देंगे? शायद हाँ, शायद ना, लेकिन उसकी एक कॉस्ट होगी। क्या आप वो कॉस्ट बेयर कर सकते हैं? क्या आप वो कॉस्ट बेयर करना चाहते हैं?
क्योंकि ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि क्या वो कस्टमर गिफ्ट लेने के बाद थोड़ा गिल्टी महसूस करेगा और आपके रेस्टोरेंट दोबारा आएगा। इसमें एक और एंगल है, क्या आप श्योर हैं कि वो 25th एनिवर्सरी तक दोनों पार्टनर जिंदा भी हैं या साथ में भी हैं? हो सकता है डिवोर्स हो गया हो और आप उसे कह रहे हैं सर आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है, आइए, एंड यू वुड बी लाइक क्या, बैकफायर हो सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज यू आर नॉट अपडेटेड योर कस्टमर डेटाबेस, राइट? इट इज दोस टाइप ऑफ थिंग्स। Like I'll tell you one of my experience. I have this. I bought a bike in October. काफी टाइम से ड्यू था, बजाज से लिया, एंड ऑफ कोर्स शुरुआत में वो टिपिकल जो कॉल्स आती हैं कि सर आपका ये बन के आ गया है, वो डॉक्यूमेंट आ गया है, आप ये ले लीजिए, वो लीजिए। आई यूज्ड टू गो एंड पिक इट अप। उस वक्त तो मार्केट खुला भी था, लॉकडाउन्स भी नहीं थे। आफ्टर दैट दोस पीपल हैव मेड माय लाइफ हेल विद वन थिंग। फोन आएगा, मैं उठाऊंगा, सर दिस इज अ रिमाइंडर कॉल अबाउट द सर्विसिंग ऑफ योर बाइक। लाइक ओके, फर्स्ट सर्विस मैं करा चुका हूँ। यस सर, वी कैन सी इन आवर सिस्टम दैट आपका फर्स्ट सर्विस हो गया है बाइक का। फर्स्ट सर्विस होता है सिर्फ कुछ शायद 100 या 500 किलोमीटर्स पे था, 500 पे था शायद, करवा लिया। मैंने कहा ओके, तो सेकंड सर्विस कितने पे होगा? तो दे वर लाइक 4000 पे सर। आई वाज लाइक ठीक है, अभी तो मेरी बाइक इतना चली ही नहीं है, जब हो जाएगा मैं करवा लूंगा। एवरी 15 days दैट गर्ल कीप्स कॉलिंग मी, सर आपकी बाइक की सर्विसिंग के लिए कॉल था। आई एम लाइक कि भाई थोड़ा कॉमन सेंस तो यूज करो यार। अगर मैंने अक्टूबर में बाइक परचेज की है और मैं अगर, भाई मैं स्विगी या जोमेटो में तो काम करता नहीं हूँ कि सारा दिन बाइक लेके दौड़ता रहूंगा। 4000 किलोमीटर पूरे करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता होगा? कुछ तो एस्टिमेट लगाओ, उस हिसाब से तो कॉलिंग करो। या एटलीस्ट चलो पिछला कॉल किया था आपने तो उसका कहीं डेटा तो रखो कि ओके हमने इनको फरवरी में कॉल किया था और इस बंदे ने बोला कि इसका 2500 किलोमीटर हुआ है। अब 1500 किलोमीटर के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम होगा? छोड़ो तो सही, आई मीन आप कस्टमर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो मेरे साथ, वेरी गुड, आई अंडरस्टैंड, यू वांट टू टेक केयर ऑफ मी एज अ कस्टमर, पर इतना भी टेक केयर मत करो कि मेरे लिए वो जी का जंजाल हो जाए यार। So probably in your business ideas you'll have to think at some stage about these. Okay, key resources, ये सब करने के लिए, ये एक्टिविटीज करने के लिए, ये रिलेशनशिप बनाने के लिए, इन कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, व्हाट इज इट दैट आई विल रिक्वायर? अगर प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल चाहिएगा, मशीनरी चाहिएगी, स्पेस चाहिएगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, स्किल्ड मैन पावर लगेगा, सर्विस में भी यही सारी चीजें लगेंगी। कुछ कंपोनेंट्स नहीं होंगे बट कुछ और कंपोनेंट्स लगेंगे। वो क्या मेन रिसोर्सेज हैं जो मेरे बिजनेस के लिए शुरुआत में लगेंगे ही लगेंगे? अच्छा, यहाँ स्टार्टअप्स के केस में मैं एक चीज शुरुआत में प्रोबेबली क्लियर नहीं की थी, इसको इस तरीके से भी देखो कि स्टार्टअप में तुम शुरुआत में कंप्लीट चीजें नहीं स्टार्ट कर पाओगे, लेकिन जो वो जो बेसिक मिनिमम चीजें हैं, जैसे इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बार्बर सर्विस, लेट्स से हेयर सैलून, हेयर सैलून सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए भी जो सबसे शुरुआत में जो चाहिए मिनिमम, बेयर मिनिमम इज योर दोस 3 टाइप्स ऑफ सिजर्स, 4 टाइप्स ऑफ combs and those dryers and 4-5 उस तरह के इक्विपमेंट्स। You don't need a shop, you don't need those big glasses, frames and those chairs and with those वो क्या होता है, वो ऊपर से आ जाता है, वो स्टीम या जो भी करता है वो बालों को। You don't need those kind of machineries, लेकिन कम से कम 3 कैंची, 4 तरह के कंघे और वो ब्लोअर वगैरह वो तो लगेगा। So you create your list like that. If you want to start an edtech platform, हर कोई edtech कर रहा है, everybody is trying to come online. So if you want to start an edtech coaching for let's say school kids, what is the basic key resources कि जिनके बिना काम नहीं चलेगा? सबसे पहला लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन, सबसे पहले 2 चीजें। उसके बाद में you will need a good software
जिसमें आप इंटरैक्टिव वीडियोस बना पाए, राइट? ये 3 बेसिक चीजें होंगी जो आपको कोई एडटेक का एक प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चाहिए। अब इसके बाद ऑफ कोर्स यू कैन हैव दोज लाइट्स, स्टूडियो, माइक, और बिल्कुल वो फिल्टर, वॉइस फिल्टर वाला माइक एंड एवरीथिंग एल्स कैन कम लेटर। सो you'll have to create those list like these कि क्या बेसिक चीजें हैं जो मुझे चाहिएंगी ही चाहिए। देन यू थिंक अबाउट चैनल्स, कैसे पहुंचूंगा अपने कस्टमर्स तक? क्या डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो सकती है? कैन आई रीच माई कस्टमर डायरेक्टली? कैन आई क्रिएट इंटरमीडियरीज जिनके थ्रू पहुंच सकूं? और कैन इंटरनेट बी माई इंटरमीडियरी? You'll have to devise your models around this. Then who would be those key partners जिनके साथ में मुझे काम करना होगा? If you are a freelancer, then it's a little different thing, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग में खुद काम लेते हैं, आप काम करके कस्टमर को वापस कर देते हैं। But still, you will need to source some work from other places also. वो कौन लोग होंगे, वो कौन से वेबसाइट्स होंगे, वो कौन से पोर्टल्स होंगे जहां से आप ये चीजें ले सकते हैं? You will need some service providers, you will need some raw material providers, you will need some technicians, you will need some content creators, you will need somebody to reach out to that customer of yours, marketing people, digital marketing wala, SEO wala person. So these would be your key partners. इनमें से कितने लोग होंगे जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता? की पार्टनर्स की कितनी डिपेंडेंसी होगी आपकी? कौन सा ऐसा काम है जो प्रोबेबली शुरुआत में 6 महीने आप खुद कर सकते हैं, उसके बाद में कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें? You'll have to think on those lines, because everything has a cost. बात ये नहीं है कि आप कितना कर सकते हैं और आप कितना किसी दूसरे को दे सकते हैं, but the point is everything has a cost and everything will affect your customer delivery, every act. आप जितना सिंसियरली अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं, दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा एट दैट सेम लेवल। लेकिन क्या आप अकेले हर कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सो इट इज दैट बार्गेन कि कस्टमर डिलीवरी में कितना डाइल्यूशन बर्दाश्त कर पाऊंगा मैं फॉर ग्रोथ ऑफ माय बिजनेस, एंड दिस विल गिव यू एन आइडिया कहां से पैसे बना सकता हूं मैं ये सब करके। डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करके, उस प्रोडक्ट का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सेल करके, उस प्रोडक्ट के ऊपर एडिशनल फीचर्स सेल करके, उस प्रोडक्ट के साथ में एक सर्विस कंपोनेंट सेल करके, उस प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सेल करके, या अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी और बिजनेस का प्रोडक्ट सेल करके। वो कितने तरीके हो सकते हैं जिनसे मैं रेवेन्यू बना सकता हूं। शुरुआत में प्रोबेबली इट वुड बी ओनली वन रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर यू, जैसे एडटेक में जो हम अभी बात कर रहे थे। बच्चा आपको पैसा देगा, आप उसको क्लास पढ़ाएंगे, वेरी गुड, एक रेवेन्यू स्ट्रीम हुई। टुमारो देयर माइट बी अ कंपनी हु वांट टू स्पॉन्सर योर वीडियोस, 2 रेवेन्यू स्ट्रीम हो गए। थर्ड, प्रोबेबली 1 year डाउन द लाइन यू कैन टारगेट दोज स्कूल्स जिनके पास अपना ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको आपका सब्सक्रिप्शन बेच सकते हो। उन स्कूल्स को, इंडिविजुअल बच्चे को नहीं, स्कूल को पूरे को। Probably some years down the line, you can become a channel partner for those schools or universities कि उनके कोर्सेज आप ही डिजाइन करके आप ही एग्जीक्यूट भी करें। फोर्थ,
probably is an examination portal. आप अलग अलग लोगों की एग्जाम्स ले सकते हैं, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स अपने पोर्टल के थ्रू ले सकते हैं, एंड दे विल पे यू मनी फॉर दैट. तो ये मतलब इस एक एग्जाम्पल के अलग अलग किस्म के रेवेन्यू स्ट्रीम्स हुए जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप क्रिएट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स योर कॉस्ट स्ट्रक्चर, योर कॉस्ट शीट, how much time and money would be spent in creating all this, delivering all this. So this is your business model canvas, BMC as it is called, and these are those different aspects of it. जब आप अपने स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचेंगे तो you will, और जब आप उसे इनमें लिखने जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई मैं ये फिलहाल कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ. And second thing, this is an iterative process, जिसका मतलब है आप आज जो लिखेंगे और महीने भर बाद जब आप इसे देखेंगे तो आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बिजनेस तब तक ग्रो हो चुका होगा. कुछ चीजें होंगी जो आपको समझ में आ जाएंगी कि नहीं चलेंगी, कुछ चीजें होंगी जो आपको रियलाइज होगा हाँ अब मेरे पास कैपेसिटी है, ये नई चीजें मैं क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. राइट? सो दिस इज ऑल what I had to add from my side. So now let us take those questions and see if I am able to handle those doubts. So let me finish this. Let's come to the window. Where are the question answers? Okay, there are 4 in chat, 2 in question answer. Okay, so first we'll go to that question, Garima's question. Health and hygiene. Okay, so what is the durability in terms of business sense? Yes. See, Garima, what happens is right now also this was happening what you just asked. If you would have seen news portals or newspapers 1 month back, all the companies were winding down their capacities जिसमें वो ये hygiene products बना रहे थे. Because people had started using these less, so naturally जो रीसेल हो रहा था वो कम था, रीफिलिंग जो थी वो कम थी. अब यहाँ पे what can be done? What is the way out? There are 2 ways. One is you create capacities in those models जहाँ पे आप उसे चेंज करके किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में यूटिलाइज कर सकें. Probably for startups it is not easy because उनके पास एक कैपेसिटी को क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी रिसोर्सेस बड़ा मुश्किल से क्रिएट होते हैं. यस, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज इसे आराम से कर पाती हैं. क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल सेम होता है. जैसे एशियन पेंट्स ने किया. एशियन पेंट्स केम आउट विद देयर ओन रेंज ऑफ होम सैनिटाइजर्स एंड एवरीथिंग. व्हाई? बिकॉज रॉ मटेरियल उनके पास था केमिकल. केमिकल में कलर मिलाया तो पेंट बन गया. केमिकल में स्किन फ्रेंडली चीजें मिलाई तो सैनिटाइजर बन गया. सो दे कुड चेंज दैट. बट यस, फॉर अ स्टार्टअप आल्सो यू शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट क्रिएट हो रहा है सेल्स का, आप उसका एडवांटेज लीजिए, लेकिन परमानेंट कैपेसिटी क्रिएट किए बिना, बिकॉज इट इज ओनली अ फैड. नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, एक बार कोविड गया सैनिटाइजेशन कम हो जाएगा वापस. पीपल विल नॉट बाय सैनिटाइजर्स. तो अगर आप एक परमानेंट मशीनरी परचेज कर लेते हैं, कैपेसिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो वो आपके इट विल बी वेट अराउंड योर नेक. मत कीजिए, शुड नॉट डू दैट. ओके, साहिल. साहिल, हर बिजनेस, Bharat would like to answer this question live. No, sir, I Okay. was creating a spotlight for you. Okay, okay. Yeah. Okay. You're on Thank you. spotlight. Thank you, thank you. Okay, Sahil, you know, in startup business, या आप स्टार्टअप को लेकर जितना भी लिटरेचर पढ़ते हैं ना, almost all of it is concentrated about innovation. कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ. But 90% of the startup ecosystem
works on execution. Success of a business model or success of a startup, with my experience or with my knowledge, I would say up to 90% is based on execution. कमाल का आइडिया बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन उस आइडिया के ऊपर 6 महीना 1 साल तक लगातार डे इन डे आउट मेहनत कौन कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट है. And there is a scope for every player in the market. मेडिसिन शॉप्स थे, ऑनलाइन पोर्टल्स आए. एक ऑनलाइन पोर्टल था, 4 हुए, 4 के 15 भी हो जाएंगे. देयर वुड बी स्पेस फॉर पीपल, देयर वुड बी स्पेस फॉर कंपनीज. और स्टार्टअप में सिर्फ ऐसे मत सोचो कि आप एक नया पोर्टल क्रिएट करके एक नया ह्यूज कंपनी क्रिएट करोगे. थिंक ऑफ इट इन दीज टर्म्स आल्सो कि आप एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करोगे, कस्टमर बेस क्रिएट करोगे, 3 साल बाद उसे सेल आउट कर दोगे टू समबडी एल्स, टू अ बिगर प्लेयर. Take your money, move out. What Big Bazaar did? किशोर बियानी ने क्या किया? उन्होंने बिग बाजार क्रिएट उन्होंने बिग बाजार क्रिएट किया. Amazon और फ्लिपकार्ट के आने से और ई कॉमर्स के ग्रो करने से बिग बाजार के लिए मुश्किल हो रहा था कंपीट करना. कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने उसे सेल आउट कर दिया and he made money on it. So इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको बिल्कुल 50 साल 60 साल तक अपना स्टार्टअप को ग्रो करके ह्यूज बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट बनाना है. बनाइए, बहुत अच्छी बात है, बट प्रोबेबली एट सम स्टेज यू कैन आल्सो थिंक ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू इन द प्रोडक्ट एंड देन सेल इट ऑफ, मेक मनी, मूव आउट, गो ऑन हॉलिडेज, राइट अ बुक, शिफ्ट टू गोवा परमानेंटली. दैट इज आल्सो अ वे. ओके. Yes. Sir, most of the young entrepreneurs are here. So there is a very good entrepreneur, which is Kunal Shah, the founder of Cred. The Cred, yes. See, what Cred? He has said. Please go ahead. So he has said to find a pot of gold in your startup, in your humanity. So he has said this. So in terms of what we should do to find out this. Is there any other type of innovation other than product innovation? Anonymous attendee. Yes, there are. There are various types of innovation. There are process innovations. There are another raw material sourcing innovations. In fact, I don't know. मैंने अभी लिंक्डइन पे कुछ दिन पहले एक शेयर किया था. There was this innovation wheel that I had shared. I think Ayushi has that. Ayushi, you can share with these people. I know, so that will give them an idea. Sure. सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन करना जरूरी नहीं है. हर कोई एप्पल नहीं बन सकता. And you don't need to be an Apple. Become a Vivo, become an Oppo, still you will make money, still you will create value in customers' life, and still you will earn revenues out of it. In a business, what matters most, quality of the product or cost from investors' point of view? In a business, profitability and profit matters most. At the end of the day, अगर आप 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में बनाएंगे, इन्वेस्टर वुड नॉट बी वरिड अगर आप 100 रुपए की जगह उसे 500 रुपए में बेच पाए. He or she, whoever, VC हो, एंजल इन्वेस्टर्स प्रोबेबली इतना नहीं करते हैं, बट वेंचर कैपिटलिस्ट या एनीबडी हु इज गिविंग यू मनी will be only worried about the profits. क्या आप वापस पैसा कमाकर उसे दे सकते हैं? क्या आप स्टार्टअप के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं? अगर आपका प्रोडक्ट आप 5 गुना प्रीमियम पे बेच सकते हैं, बढ़ाइए कॉस्ट, कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर आप प्रीमियम पे सेल नहीं कर सकते, मार्केट कंस्ट्रेन आपको बियॉन्ड अ पॉइंट सेल नहीं करने देगा, देन ऑफ कोर्स कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है.
Akshit has asked, this was Yashideep. Akshit has asked, sir, how to convince people to believe us in our startup even if we don't have any qualification to do so? Belief का qualification से लेना देना नहीं होता friend. See, try this just to check in the beginning. अपने पेरेंट्स को अपना बिजनेस आइडिया सेल करके देखो, क्या वो बिलीव करेंगे? बिकॉज दे नो यू नो, आप सभी लोग जितने भी अटेंडीज होंगे यहाँ पे, दे वुड बी अप्रोक्सीमेटली 20-21 ईयर्स ऑफ एज. उनके पेरेंट्स उनको अच्छी तरह से जानते हैं. तो अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाते हैं अपने बिजनेस आइडिया के लिए, पैसा नहीं, टाइम देने के लिए, पैसा तो बात की बात है, पैसा तो और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट अगर आप उन्हें ये कन्विंस कर पाते हैं कि पापा 6 महीना मुझे मेरे बिजनेस आइडिया पे या 1 साल मुझे मेरे इस आइडिया पे काम करने दो, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो आपने बिजनेस आइडिया में आपके दम है या आपकी पर्सनालिटी में वो वैल्यू है. तो फिर बाहर वाले को कन्विंस करने की कोशिश करना. बट यस, अगर हम स्टार्टअप के उसमें बात करें इकोसिस्टम में, तो यू वुड, अगर आप लोग ये लिटरेचर पढ़ते होंगे, यू वुड कम अक्रॉस समथिंग्स लाइक एलिवेटर पिच. बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज किया जाता है, राइट? 1 मिनट के अंदर आपको अपना 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आपको अपना बिजनेस आइडिया एक्सप्लेन करना है इन्वेस्टर को, और अगर आप उसे ठीक से समझा पाए तो वो इन्वेस्ट कर देता है. मोस्ट ऑफ इट हैपेंस ऑन अ ट्रायल एंड एरर बेसिस. जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी भगवान नहीं है, और इवन इंक्यूबेशन मैनेजर्स या जो इंक्यूबेशन फैसिलिटीज या एक्सेलरेटर्स के जो इवैल्यूएटर्स होते हैं ना, दे आर also not gods. They work on their instincts and some formulae that they have created for themselves. You know, there are venture capital funds who have refused money to Ola, who have refused money to Oyo, who have refused money to Flipkart, who have refused money to Paytm, Cred, everybody. And today, even Swiggy को शुरुआत में पैसा जनरेट करने में बहुत मुश्किल आई थी, but today it has given returns to its investors. So it's not a foolproof concept. Yes, स्टार्टअप्स के जो गेम में सबसे मजेदार चीज है ना, वो ये है कि फाउंडर और आइडिया दोनों का मिक्स काम करता है. समटाइम्स इन्वेस्टर्स वुड से कि आइडिया तो वो है जो 1000 लोग और भी कर रहे हैं, पर इस फाउंडर में दम है, इसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा है कि ये कर जाएगा, एंड दे इन्वेस्ट मनी ऑन फाउंडर्स रादर देन ऑन बिजनेस आइडियाज. एंड इट हैपेंस वेरी ऑफन, बिलीव मी. Many business investors we have spoken to, we have on our panel also, and in fact MET में भी आपके interactions होते रहते होंगे. Ask them this question and they'll tell you this, that जब बात gut feel की आती है ना, तब वो लोग फाउंडर के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं rather than that business idea, because उस business idea को सक्सेसफुल बनाना उस फाउंडर के बस की बात है. How can we, Shirish is asking, how can we make an organization from a software like Amazon? How can we make an organization from a software? यार ये समझ में नहीं आया बेटा. Probably if you can reword it a little. Sir, example Facebook. Sir, he's asking, like, from just a software, how can we make a company big like Amazon, just from a software? Okay. अगर आपका वो सॉफ्टवेयर आपके कस्टमर्स की लाइफ में, वो अपन फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन, वो कस्टमर की लाइफ में कोई ऐसी कमी पूरी कर रहा है, इट इज फुलफिलिंग सम नीड इन दैट कस्टमर्स लाइफ which is not fulfilled by somebody as of now, yeah, probably is not fulfilled at a lesser cost by somebody, then of course you can create anything.
आज हमें प्रोबेबली ऐसा लगता है अमेजोन जैसी अमेजोन बन गई, पेटीएम बन गया, अब हम कहां से एक नया बिजनेस आइडिया लाएंगे ऐसा जो इतना बड़ा कुछ बन सके। बट यू सी, नॉलेज के बारे में या बिजनेस आइडियाज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ना, कि जो चीजें हमें पता है उन्हीं के बारे में हमें कुछ पता है। जो चीज आज तक बनी ही नहीं, किसी ने सोची ही नहीं, उसके बारे में हमें पता भी नहीं है। somebody will have to think for the first time। जब कंप्यूटर क्रिएट हुआ था, या जब लैपटॉप्स क्रिएट हुए, या जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए, या जब इंटरनेट अपने आप में इंटरनेट क्रिएट हुआ था, उसके पहले नहीं था ना किसी को नॉलेज कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब अमेजोन बना, लोग ऑनलाइन सामान खरीदेंगे, nobody had any idea, but somebody took a chance, somebody thought कि क्या ऐसा हो सकता है। बिजनेस एक्टिविटीज हैं, क्या मैं किसी एक एक्टिविटी को चेंज कर सकता हूं हल्का सा? पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार क्या कर रहा है? इंटरनेट एज अ सेल्स मीडियम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। फाइनेंस, फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ट्रस्ट। मैं कहता हूं आ जाओ ऑनलाइन परचेज कर लो, ट्रस्ट पे बड़ा मेजर इशू है। अरे भाई, फाइनेंस में मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेता हूँ, या मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ, या मैं कोई भी और इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरे लिए वो जो मुझे जो वो पॉलिसी जो बेच रहा है उस इंसान पे भरोसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पॉलिसी बाजार ने कहा कि नहीं, इसमें एक और इशू भी है। वो ये है कि वो एक बार किसी को बोल देता है ना इंसान कि मैं पॉलिसी यार लेना चाहता हूँ, तो वो उसका जो वो ट्रस्ट वाला बंदा है ना, उसका दोस्त है या उसका चाचा है, मामा है, जो भी है उसका रिश्तेदार, पीछे पड़ जाता है उसके, पॉलिसी खरीदो खरीदो खरीदो, और अल्टीमेटली उसे अपनी जान छुड़ाने के लिए खरीदना पड़ता है। पॉलिसी बाजार पे ये आराम है। और दूसरा, कंपेयर करने को मिलता है। आप 4 तरीके की पॉलिसीज को ऑनलाइन कंपेयर कर लेते हैं, तो पॉलिसी बाजार का मॉडल भी काम कर गया ना। जबकि अब तक तो यही कॉमन नॉलेज कहती थी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तो ट्रस्ट के बेसिस पे ही बेचे जाते हैं, बट पीपल आर बाइंग। तो ये आपकी अब इनोवेटिवनेस है कि आप ये सोच सकें कि वो क्या फैक्टर है जिसे मैं हल्का सा चेंज करके एक नई बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर लूं। और अगर कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, मान लो आप सोचे 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 पर अब कुछ भी नया अनोखा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं, किसी को कॉपी कर लो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को, और उसे ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट करो। यू विल स्टिल मेक गुड वैल्यू फॉर योर बिजनेस। थिंक अबाउट दिस। आई मीन, अगर हम स्टडीज को एक स्टार्टअप की तरह लें, आपके क्लास में 30-30, 40-40 स्टूडेंट्स तो होंगे ही मिनिमम, राइट? अगर हर एक की स्टडी उसका अपना स्टार्टअप है, एक सेकंड के लिए ये सोच के देखो, और उसके मार्क्स उसका रिटर्न है, सबको एक जैसा इनपुट मिलता है, सबको एक जैसे रिसोर्स मिलते हैं, सब एक ही काम करते हो, जो सबसे अच्छा एग्जीक्यूट करता है उसको सबसे अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और जिसका एग्जीक्यूशन कम है, प्लानिंग बड़ी शानदार है, सेमेस्टर चालू होते ही मेरे इतने सब्जेक्ट हैं, इनमें इतने यूनिट्स हैं, मैं रोज इतने घंटे पढ़ूंगा तो इतने दिनों में मेरा कोर्स पूरा, और इसके साथ में ये ऑनलाइन एडिशनल ये वाला कोर्स कर लूंगा, वो वाला एक्सेल सीख जाऊंगा, पावर पॉइंट में ये नया कर दूंगा। जो इसे एग्जीक्यूट करेगा वो वैल्यू क्रिएट करेगा। लाइफ के हर पॉइंट पे यही इंपॉर्टेंट है, लाइफ के हर फेज में यही है। एग्जीक्यूशन इज व्हाट मैटर्स, राइट? आइए देखिए कुछ नया आया। सुयश, sir, Zomato and Swiggy are in losses, right? Yes. Then also investors are investing. Yes. So how are investors making money? देखो, अब इसके एक्चुअली 2 जवाब हैं। चलो दोनों दे देता हूं मैं, हालांकि ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन में ऐसा नहीं देना चाहिए, बट there are 2 things. Investors are investing money because someday these businesses will become profitable. They are taking a business risk.
इन्वेस्टर्स, जो हर एक में होती है। आप रेस्टोरेंट खोलो, रिस्क है ना, क्या पता लोग आएंगे नहीं आएंगे, डोंट नो। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलो, किराने की दुकान खोलो, भाई आज टुडे ग्रोसरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, लेकिन ऐसा थोड़ी कि एवरी ग्रोसरी स्टोर इज मेकिंग मनी। कुछ हैं जो लॉसेस में भी है, बंद हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इनटू दैट पोटेंशियल ऑफ दीज पीपल मेकिंग मनी। सेकंड, जो स्टार्टअप्स के केस में, ये जो तुमने पूछा ना कि भाई पेटीएम इज मेकिंग लॉसेस, स्विगी इज मेकिंग लॉसेस, जोमेटो इज मेकिंग लॉस, फोन पे इज मेकिंग लॉस, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं। ओला, उबर, एवरीबडी इज मेकिंग लॉस। So how are they making money? See, the way they are making money is, जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने स्विगी में 2% स्टेक खरीदा, लेट्स से 150 करोड़ में, 150 करोड़। वैल्यूएशन ग्रोस और मेरे उस 2% की शेयर वैल्यू हो गई 180 करोड़। अब आयुषी comes in, she buys it, my stake. I will move out, I will sell it off, move out. मैंने 180 करोड़ लिया, मैं बाहर चला गया, मैंने कमा लिया 60 करोड़। आयुषी हैज एंटर्ड इन एट 180 करोड़। फिर से वैल्यूएशन ग्रो किया, बिकॉज बिजनेस ग्रो कर रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स ग्रो कर रहे हैं, उसका वैल्यूएशन हो गया उसके इन्वेस्टमेंट का 220 करोड़। उसने सेल किया, 40 करोड़ प्रॉफिट कमाया, बाहर आ गई। नाउ भरत एंटर्स एट 220। भरत विल अगेन मेक सम 30 क्रॉस ऑन हिज इन्वेस्टमेंट और 250 पे वो एग्जिट कर जाएगा। दैट इज द वे दीज इन्वेस्टर्स मेक मनी। दो तरीके हैं, एक तो वो कि कंपनी प्रॉफिट बनाएगी वन डे, दीज विल बिकम प्रॉफिटेबल वन डे, एंड फिर उस पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न्स मिलने लगेंगे। और दूसरा इज जो इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करने पे होने पे दे टेक एग्जिट्स, और उसमें भी पैसा कमाते हैं वो उस तरीके से भी। Okay, Sheesh has come up with, sir, even the products of tech giants have failed, like Google Hangouts. Hangouts is a failure. People still use WhatsApp. Even Google has more reputation than WhatsApp. When WhatsApp was a startup, then why WhatsApp is more successful product than Google Hangouts? देखो मैं फैकल्टी हूँ ना, टीचर हूँ, तो इसलिए मैं Hangouts की जगह हैंडआउट्स बोल रहा हूँ बार बार। 3 बार मेरे मुंह से हैंडआउट्स निकल गया है। I'll tell you. Google Hangouts और WhatsApp के बीच का जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था, Hangouts का मोबाइल ऐप नहीं था, WhatsApp मोबाइल पे अवेलेबल था। और जिस तरह से कस्टमर बेस हमारा चेंज हुआ है ना, उनका यूजेज पैटर्न, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वर्क्स वेल ऑन मोबाइल वर्क्स, और फॉर एनीथिंग फॉर विच यू हैव टू गो टू अ लैपटॉप और अ सिस्टम, वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं करता है। So there are products of giant companies also that have failed. So स्टार्टअप में तुम्हें तो इस वक्त बिल्कुल भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या पता मेरा बिजनेस आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, क्या पता मुझे कस्टमर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ट्राई इट, यू नेवर नो। ऑफ कोर्स हाँ, जो बड़ी कंपनीज होती है उनके पास एक एडवांटेज होता है, जैसे फेसबुक, तुमने तो हैंगआउट से पूछा, इससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम फेसबुक का था। फेसबुक का मैसेंजर लोग यूज ही नहीं करते, फेसबुक यूज करते हैं लेकिन मैसेंजर यूज नहीं करते। चैटिंग के लिए व्हाट्सएप पे जाते थे। फेसबुक ने बड़ी कोशिश की, नहीं हुआ, अल्टीमेटली फेसबुक ने क्या किया, व्हाट्सएप को परचेज कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कंपीट नहीं कर सकते ना, लेट्स बाय इट आउट, परचेज ही कर लेते हैं। सो बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स फेल होते हैं और छोटी कंपनीज के प्रोडक्ट्स उन जगहों पे चल जाते हैं। व्हाई? बिकॉज वो छोटी कंपनी के फाउंडर ने या उसकी जो फाउंडिंग टीम है, उसने कस्टमर के पेन पॉइंट को ज्यादा अच्छे से समझ लिया है। कई बार क्या होता है ना, जो कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है ना, उसके अंदर जो कस्टमर फीडबैक प्रोसेस होता है, जो इनोवेशन प्रोसेस होता है ना, वो भी बड़ा ही लेबरसम हो जाता है, और फिर वो उसके लिए डिसएडवांटेज बन जाती है। आई मीन मुझे याद आया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी फोर्ड वर्सेस फेरारी?
कुछ लोगों ने तो देखी होगी, Yes, sir. राइट? जिन्होंने नहीं देखी है, देखिए, बिकॉज बिलीव मी, हॉलीवुड या अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री या यूरोपियन फिल्म इंडस्ट्री, स्पेशली ब्रिटेन, जो इंग्लिश फिल्में बनाते हैं, सुपर हीरोज की मूवीज के अलावा, डीसी और मार्वल के अलावा बहुत शानदार मूवीज बनती हैं। Ford versus Ferrari is about the rivalry of Ford and Ferrari for their sports cars. फ्रांस में एक लमांस करके एक रेस होती है, 24 आवर्स चलती है, कंटिन्यूसली 24 आवर्स गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। कौन जीतता है उसे उसके ऊपर थी। उस मूवी में दिखाया है कि फोर्ड वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स, लेकिन कभी लमांस नहीं जीती। फेरारी बहुत छोटी कंपनी थी उस वक्त, 4 साल लगातार लमांस जीती। एंड फोर्ड की वो कोशिश लमांस जीतने की, उसके ऊपर वो मूवी है। और उसमें क्लियरली दिखाया है कि वो फोर्ड इतनी ब्यूरोक्रेटिक, इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि उसमें पहले इससे परमिशन लो, फिर इससे परमिशन लो, फिर वाइस प्रेसिडेंट से लो, फिर प्रेसिडेंट से लो, फिर चेयरमैन के पास फाइल पहुंचती है, फिर चेयरमैन प्रेसिडेंट को बताता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को बताता है, प्रेसिडेंट सीईओ को बोलता है। काहे का इनोवेशन करेगा वो कंपनी, कैसे करेगा बेचारा। And you know about PTM, I'll tell you this story. We have heard it from its vice president, जो थे सौरभ जैन। उन्होंने हमें ये स्टोरी बताई थी कि विजय शेखर शर्मा यूज्ड टू, अब एक, क्योंकि वो एकदम रूट से नॉर्मल उससे ग्रो किए हैं ना, तो उन्होंने क्या किया कि वो कई बार वहां जाते हैं। उसने बताया हमें मिस्टर वो वाइस प्रेसिडेंट ने कि कई बार विजय शेखर शर्मा ठेले पे जाके कुछ चाट पकौड़ी खा लिए, ऑटो रिक्शा में ट्रैवल किए, और पेटीएम को यूज करने का उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं डायरेक्ट। अब उन लोगों को तो पता नहीं विजय शेखर शर्मा कौन है, तो वो तो एज अ कस्टमर बता देते हैं, हाँ अच्छा है मगर इसमें ये बड़ी तकलीफ है, वो बड़ी तकलीफ है। ओके, ही यूज्ड टू कम बैक एंड टेल हिज डिजाइन डिपार्टमेंट डायरेक्टली बुला के ये ठीक करो, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द हेड इटसेल्फ, राइट? तो फटाफट ठीक हो जाता, प्रोडक्ट में चेंज आ जाता, चला जाता। अब यही अगर कोई गवर्नमेंट प्रोसेस हो या बड़ी लार्ज कंपनी का हो तो नॉट पॉसिबल, इतने स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा उसे। स्मॉल साइज स्टार्टअप्स, एजिलिटी, योर स्मॉलर साइज ब्रिंग्स एजिलिटी टू योर बिजनेस। ओके, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस satisfactorily. अगर और कुछ है तो you can put it now, because we are almost touching now 2 hours. So no open questions as of now. So Ayushi, the stage is yours now, or Bharat, of course, anybody. Inderpreet, you can take the stage now. Inderpreet? नमस्कार प्रियेश सर, डॉक्टर मंजू कौशिक हियर। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कैसे हैं साहब? बस एक्चुअली बढ़िया है मैम। आपको पहले भी हमारा एक वर्कशॉप लिया था, मैं अटेंड नहीं कर पाई, थोड़ा सा आपने फेब में लिया था, और जी, बच्चे जी, आपकी मैम। बहुत तारीफ कर रहे थे कि प्रियेश सर से हमें सुनना है और बहुत अच्छा बोलते हैं। तो स्पेशली मैं आपका सेशन सुनने के लिए इतनी देर से, और बहुत ही अच्छा, कुछ मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी इस बारे में अरे नहीं मैम, आपने, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है ना, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इतने पेशेंस के साथ। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। thank you ma'am. MIT University, matlab it's like, although I'm not directly related to MIT, but I have been matlab Amit sir, Amit Jain sir has been a mentor. मैं उनके साथ काफी सालों से टच में हूँ। So MIT is like, if you call me, I'm there always. Because मैंने अमित सर से कुछ दिन पहले बात भी हुई थी, I told him कि मैंने कहा सर, जब मैं एजुकेशन में आया था and he was a guest at our place, at that time I was at Purnima, and मैंने कहा सर आपको इनवाइट करने और आपको एज एन ऑडियंस में बैठकर सुनने से यहाँ तक पहुँचना जहाँ पे मैं आपके यूनिवर्सिटी में, जहाँ आप हेड कर रहे हैं और मैं आपके वहाँ पे कोई लेक्चर दे पा रहा हूँ, मेरे लिए तो इतना ही लाइफ में अचीवमेंट
एक बड़ा स्टेज आ गया है. So he was like, नहीं, we'll do more things very often. And very good students. I mean, आपके पास बहुत अच्छे students हैं, इतना कामली सुनते हैं, सुनने को तैयार हैं, absorb करने को. And this team of your cell is very professional. I mean, that girl, I'm missing her name, Sakshi, शायद. Yes. She started this conversation. Ayushi has been following up continuously. In fact, Ayushi ने आज मुझे सुबह भी एक बार कॉल किया कि सर ये सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आपका सेशन है आज, तो क्या पता कहीं भूल ना गए हो और निकल जाए कहीं घूमने फिरने. No, sir, it was not like that. So नहीं, but yes, I also thoroughly enjoy these sessions because मजा आता है इन लोगों के साथ interact करके. एक्सेल की जो टीम है ये बहुत जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. एटलीस्ट मेरी तो है सर, और यूनिवर्सिटी की भी है, और बहुत अच्छा ये काम करे 3 दिन से. मतलब ये इतने 1 महीने से उस पे लगे हुए हैं दिन रात. भरत की तो तबीयत खराब हो गई थी कल, मैंने कहा ऐसे मत करो, थोड़ा सा वो रखो Yes, इसको. ma'am, बिल्कुल. नहीं बहुत Thank अच्छे you हैं. very much for this opportunity, ma'am. Thank you. थैंक यू सर. So, sir, with your permission, I would like to invite Jayashree Ajmera for a vote of thanks, sir. Please, definitely. Thank you, Inderpreet. I'm extremely honored to be given this opportunity to deliver this vote of thanks. Good morning, ladies and gentlemen. I, Jayashree Ajmera, member of the Entrepreneurship Cell AUR, on behalf of my team, would like to extend my sincere gratitude to Mr. Priyesh Tiwari for his ever uplifting words. Sir, your fitting examples and motivating words would surely drive our participants to achieve more in their upcoming future. I would also like to thank Dr. Manju Kaushik, organizing chair, for her kind support throughout the event. A special thanks to Mr. Sagar Katwa, mentor for Ideathon 2.0, for joining us for this event. My humble gratitude to Mr. Inderpreet Singh for being such a wonderful host for the entire session. A special mention to Mr. Lalit Bharadwaj and entire IT team, and a hearty thanks to the whole organizing committee of Ideathon 2.0 for their commendable hard work, and our participants for being such a lovely audience. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you, Amity University. In case tomorrow we are interacting again, but in future also you can get in touch with our LinkedIn handle, my LinkedIn handle. Some of you are already connected, and remaining participants, you can always get in touch with us. We would be very happy to help on a platform like Amity also, or individually also, whichever way you want. Thank you, Manju ma'am. थैंक यू. Thank you for having me. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir.